newspapers, radio, TV, magazines, and these days the media are full of news about globalization and global issues. They used to say that you cannot watch it silence if your neighbor's house is on fire. If you do not have put it out, the fire may spread to your house. It is like that on a much larger scale now. Now globalization, because of with the help of mass media means newspapers, radio, TV, magazines. These are some examples of mass media nowadays. Internet, that is the has become the major component of mass media. So because of these mass media, we are able to know what is happening in our neighboring countries or far away countries. We are able to see what changes are going on globally. So mass media has made the whole world as if we are a one family. So they used to now media used to say that if your neighbor's house catches fire, it can spread to your house also. So it's better to help the neighbor in extinguishing that fire. Otherwise, it will spread to your house, and your house will also be on fire. So globalization is somewhat the same. Let us see what action is being taken at the global and local levels to tackle problems related to pollution and resource scarcity. Now, let us see at the international level what solutions have been found has been found by the different countries to tackle the to cope up with the problem of pollution and resource scarcity. Resource scarcity scare means resources like air, water, fuel, petrol. इनकी जो कमी होती जाती है, scarcity means कमी होना. इस to कैसे इस चीज को solution उन लोगों ने निकाला है. Now let us see international issues first. Atmospheric pollution in the Ruhr Valley in Germany may mean acid rain in Belgium or England. See, Germany, the Ruhr Valley of Germany is mineral rich area, very rich mineral rich area is there. So, if any atmospheric pollution happens in Germany, Ruhr Valley में अगर बहुत जबरदस्त pollution है, atmospheric pollution, atmosphere में बहुत pollution है, so it means that Belgium and England, which are nearby Germany, you can say they are the neighboring ones. They it's very obvious, it's very automatic that the atmosphere of England and or Belgium will also get polluted as they are the neighboring nations, right? And if the air there is pollution in the atmosphere, and when it rains, so that pollution mixed with rainwater and it becomes acid rain. So बेल्जियम अगर रूर वैली में गंदगी है तो उसका असर बेल्जियम और इंग्लैंड में भी पड़ेगा. A few years back, forest fires in Borneo and Sumatra in Indonesia released so much smoke that there was a toxic smog and brown haze hanging over the entire Southeast Asia. थोड़े साल पहले बोर्निया और सुमात्रा, these are the places in Indonesia, वहाँ पे जबरदस्त जंगलों में आग लगी थी. The forest catches fire and the smoke that was released from that fire, वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक थी, इतनी ज्यादा जहरीली थी कि और उसमें ऊपर आसमान में ब्राउन ब्राउन कलर का धुआं सा बन गया था. एंड दैट हेज, दैट स्मॉग was spread all over the Southeast Asia. Southeast Asia, southern part of Asia is India, and east में कौन सा है? या चाइना एंड ऑल. ये पूरा पार्ट जो था इन सभी कंट्रीज के बादलों में एक जहरीला स्मॉग धुआं बहुत दिनों तक बना ही रहा था बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन बोर्निया एंड सुमात्रा. तो हमारे पड़ोस में अगर कुछ होता है तो इट इज श्योरली गोइंग टू इफेक्ट आवर ओन हाउस और आवर ओन कंट्री. Polluted air and clouds do not respect international borders. आसमान में स्काई में बादल होते हैं, हवा है ऊपर, सो दे डू नॉट बॉदर अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर. ये पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, they spread all over, right? One country cannot clean up its atmosphere if its neighbor spews tons of poisonous gases into the air.
अगर हम कोई कंट्री अपने एटमोस्फेयर को साफ करना चाहता है तो इट कैन नॉट डू सो अनलेस एंड अनटिल द नेबरिंग कंट्री डू सो। अगर नेबरिंग कंट्री में टनों पॉइजनस गैस छोड़ी जा रही है हवा में, तो इट इज श्योरली गोइंग टू इफेक्ट आवर कंट्री एंड वी आर नॉट एबल टू क्लीन आवर एटमोस्फेयर। So both the nations has to together clean these things. Okay, the next. Global warming is not something a single country can rectify. Similarly, there are many other global issues like pollution of ocean waters, loss of biodiversity, and so on. So, global warming is not the problem of one country in the world. There are a number of countries, and one country cannot take uh, अकेले ही वो इस प्रॉब्लम को का हल नहीं ढूंढ सकती। ऐसे ही like pollution, there are other global warming, there are number of issues that every country is facing, like pollution in ocean water, loss of biodiversity. Biodiversity means flora and fauna, जंगलों का कटना और जानवरों का मरना, extinct होना, right? So these problems are faced nearly by every country, not only one or two countries, but nearly every country of the world is facing the same problem. In 1992, the Earth Summit was held at Rio de Janeiro, Brazil, to discuss sustainable development on Earth. Now, what do you mean by sustainable development? Sustainable development is to use the resources, the fossil fuels, you can say, resource in such a way that such a judicious way that it has to be सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना सोच समझ के, और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ ढूंढ के करो या जो भी है, इस तरह से यूज करना ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा कर रख सके। अगर सारा हम ही खर्च यूज कर लेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो लोग परेशान हो जाएंगे, उनके लिए परेशानी हो जाएगी। सो वी हैव टू यूज ऑल द resources in a very judicious way. ओके, तो अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन ब्राजील। सो वहाँ पे एक अर्थ समिट में सभी कंट्रीज आई थी, जो भी मेंबर कंट्रीज थी 1992 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे ऑल मेट देयर। और वहाँ पे उन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन किया था। This was followed by many countries signing the Kyoto Protocol in 1997. फिर इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में, बहुत सी कंट्रीज ने साइन किया था। The World Summit on Sustainable Development, also called Earth Summit 2020 or Rio Plus 10, was held at Johannesburg, South Africa in 2002. फिर एक बार फिर हुआ था 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नाम की प्लेस पे। उस समिट को अर्थ समिट भी कहा जाता है और रियो प्लस 10 भी कहा जाता है। द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस डिकेड शोड दैट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स वर राइजिंग। तो जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था ब्राजील में, उन्होंने सारे डाटा स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और उसको उन्होंने टारगेट्स भी सेट किए थे दैट वी विल बाय दिस ईयर वी विल अचीव दिस टारगेट्स। तो उस सब में ये डिस्कस कर रहा था। 2002 में उन्होंने फिर इस चीज को डिस्कस किया था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ता ही जा रहा है, और प्रेशर ऑन वाइल्ड लाइफ कंटिन्यू, वाइल्ड लाइफ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोग जंगली जानवरों को मारते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है बिकॉज द पॉपुलेशन इज राइजिंग, डिफॉरेस्टेशन नहीं रुक पा रहा है। और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कंटिन्यू टू बी यूज, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एसीज यूज होते हैं, एसीज में होती है कार्बन, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में ये गैस होती है। एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा एक्सपोजर is very harmful for global warming. The World Health Organization, or you can say WHO's, safety limits for air pollution continue to be exceeded in many countries. तो WHO ने एक लेवल कर रखा है एयर पॉल्यूशन को बचने के लिए कि एयर में इतना होना चाहिए, धूल वगैरह सिर्फ इस लिमिट होनी चाहिए, इससे ऊपर चला जाता है आपका गैसेस छोड़ना या धुआं छोड़ना एटमॉस्फेयर में, तो इट विल बिकम pollution, it will pollute the air, and you that air will be very harmful for the human beings.
और ऑल फॉर द ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो बहुत सी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज उस लिमिट को भी क्रॉस करके बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, एंड दे आर कंटिन्यू टू pollute the air. The Kyoto Protocol in 1997 set targets for developed countries to reduce greenhouse gas emissions. The aim was that by 2012, emissions should be reduced to pre-1990 levels. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जिन कंट्रीज ने साइन किया था 1997 में, तो उन लोगों ने टारगेट्स रखे थे कि 2012 में, उस टाइम पे 1992 में जो रिजल्ट आया था, जो सर्वे सामने आया था कि जो भी लेवल था, जितना लेवल जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या कंट्रीज, उसका लेवल हमें 2012 तक कम करना है, बहुत कम करना है। तो ये टारगेट्स अचीव करना था। नॉट ऑल कंट्रीज हैव साइन दिस एग्रीमेंट। तो क्योटो प्रोटोकॉल सभी कंट्रीज ने ये साइन नहीं किया था, क्योंकि ये गैसेस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और उसमें से सबसे पहले कंट्री तो यूनाइटेड स्टेट्स थी, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उस पे सबसे ज्यादा गैस जो रिलीज करता है, जो देश रिलीज करता है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। Between 1990 and 2000, carbon dioxide levels worldwide have gone up to more than 9% a year. अब 9% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। A treaty on protecting biodiversity was also signed at Rio de Janeiro in 1992. In 2002, 188 nations pledged that at The Hague, Netherlands, to reduce loss of biodiversity by 2010. ओके, तो इस ट्रीटी में जो क्योटो प्रोटोकॉल था, वहां पे ट्रीटी में उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी को भी रोकने के लिए, उनको भी बचाने के लिए एक 1992 में उन्होंने साइन किया था। 188 नेशंस ने, 188 कंट्रीज ने एक कसम खाई थी कि हम, कहाँ पे खाई थी कसम? नीदरलैंड्स में एक जगह है द हेग, वहां पे, कि हम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मींस फ्लोरा एंड फौना, मींस एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, उनको बचाने के लिए हम लोग सब मुमकिन कोशिश करेंगे। 2010 तक हम इसका बर्बाद होना कम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिक्लेयरिंग सर्टेन एरियाज एज सेंचुरीज और पार्क्स, नथिंग हैज बीन डन। कई एरियाज आपने भी देखा होगा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखे, नेशनल पार्क्स बनाने के बावजूद भी ये बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने से हम नहीं रोक पा रहे हैं। Today, more than 16,000 species are threatened with extinction. Many more species are declining. आज 16,000 स्पेशीज, 16,000 तरह की जातियां, नस्लें जो हैं जानवरों की हो चाहे प्लांट्स की हो, बायोडाइवर्सिटी में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अभी भी कई जो है ऐसी जातियां हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की जो अब एक्सटिंक्ट होने के कागार पे है। In chapter 1, you have already seen that groundwater in community property, we cannot claim that it is our individual property. There are 215 transboundary international rivers which can possibly lead to conflicts between countries. तो इस बुक में पहले चैप्टर में ग्राउंड वाटर के बारे में दे रखा हूँ कि ग्राउंड वाटर जो होता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के पानी पे हमारा अधिकार है, यहाँ के पानी पे अधिकार है। पानी पे सबका बराबर का अधिकार है। सो इट इज अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। तो ऐसी 215 रिवर्स ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री इंटरनेशनल रिवर्स हैं। इन ट्रांस बाउंड्री इंटरनेशनल रिवर्स, लाइक आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम योर, क्या कहते हैं, तिब्बत में मानसरोवर लेक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नियर दैट लेक and it enters India, then it flows out to Pakistan. So इंडस वैली पे, इंडस रिवर पे इंडिया का भी अधिकार है और पाकिस्तान का भी है। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इंडस हमारे देश के में पहले बहकर फिर उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंडस के पानी को रोक कर हम पाकिस्तान में भेजेंगे। ये
वरना इन दो देशों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे 215 रिवर्स ऐसे हैं ट्रांस बाउंड्री जो एक देश से बहकर दूसरे देश में जाते हैं। देन वी हैव अनदर रिवर गंगा which starts from this mountains of Uttarakhand only. It also starts from glacier Gangotri, right? And it flows towards your ईस्टर्न साइड और फिर हमारे वो उधर वेस्ट बंगाल में होते हुए फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है, फिर फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। तो अगर हम वहां पे भी रोक दे तो बांग्लादेश में नहीं जा पाएगी और ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी हमारे देश की और बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह से वी कैनॉट स्टॉप द वाटर ऑफ दीज कंट्रीज, ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। India cannot say it will build a dam on Ganga and stop all the water in India and let nothing flow into Bangladesh. India ऐसा नहीं कर सकती. Issues of water sharing will have to be decided together by the countries involved. इसीलिए ऐसे issues को दोनों देश मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि किस देश में कितना पानी रहेगा और कैसे, ये इसमें लड़ाई झगड़ा करके नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जैसे इंडस का सिर्फ 30% वाटर इंडिया में बहता है, बाकी लार्ज पार्ट इंडस का पाकिस्तान में जाती है, तो हम लोग भी नहीं रोक सकते। द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स लाइज इन इंटरनेशनल एक्शन taken jointly in unity and harmony. Regulations that are made should be enforced, and rather than wait for others to act, we should follow the rules voluntarily in the interest of humanity and the large interest of our planet. So इस तरह की जो issues होते हैं, international issues होते हैं, यहाँ पे मिलकर jointly action लिया जाता है, बहुत प्यार से unity से और भाईचारे से ऐसे solutions, ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है। फिर डिफरेंट ट्रीटीज, एक समझौतों पे साइन किया जाता है और उस समझौते में जो बातें रखी होती हैं दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली, बोथ द कंट्रीज हैज टू फॉलो दोज रूल्स स्ट्रिक्टली, कोई इस रूल को ना तोड़े। तो इस तरह से ताकि शांति धरती पे शांति बनी रहे। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज योर नेशनल एक्शन, जो हम नेशन में देखेंगे हमारे विद इन द कंट्री कैसे किया जाता है। There are other issues taken up by individual countries to reduce dependence on fossil fuels and meet 10% of its electricity requirements from renewable sources. The United Kingdom is setting up 18 offshore wind farms around Britain's coast. Britain has introduced its first wave powered bus on the island of Islay in November 2002. The bus was donated by a non-governmental organization NGO, Greenpeace. The bus will fill up at a commercial wave power generator. Okay, तो देश के अंदर ना कंट्रीज अपने अपने देशों के अंदर भी बहुत सी चीजें देखती हैं ताकि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, लाइक सॉइल इज योर फॉसिल फ्यूल, योर मिनरल्स आर फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको बनने में हजारों में साल लगते हैं। सो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो उनकी भरपाई के लिए हमें हजारों साल वेट करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू यूज दोज थिंग्स। सो इट्स बेटर टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दोज फॉसिल फ्यूल्स। तो इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ने अपने 18 ब्रिटेन कोस्ट पे 18 ऑफशोर विंड फार्म्स बनाए जहाँ पे बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाई और उस विंड मिल्स को यूज करके उन्होंने जनरेटर बनाए। और एक एनजीओ है वहां पे ग्रीन पीस, उन्होंने एक बस चलाई है, बस डोनेट की है जो कि हवा से ही चलती है। उसमें हवा भरने का जो फिलअप वहाँ पे वेव पावर जनरेटर बनाया है उन लोगों ने और उस पे उस जनरेटर से उसमें हवा भरिए तो हवा पे चलती है। दे हैड यूज्ड very effectively the wind energy. We have different sources of energies now, wind energy, solar energy. Now they have used wind energy because lot of wind is there, right? So, excuse me. Excuse me. In Tamil, in India, Tamil Nadu has started encouraging jatropha farming to produce biodiesel.
The Jatropha seed contains about 30% of non-edible oil that is non-toxic and biodegradable. It is considered to be 100% natural energy alternative to petroleum. It is believed that about 390 million hectares of wasteland in India can be brought under Jatropha. If the scheme is successful, it will reduce India's oil imports and hopefully air pollution. The plant is already being grown in Nicaragua. Excuse me. You can see the picture here. This is Jatropha plant. Okay. Now, in Tamil Nadu, what the people there did, they started the farming of Jatropha plant. Now, उसका क्या है? उसमें जो तेल निकलता है वो नॉन एडिबल ऑयल होता है. नॉन एडिबल मीन्स वी कैनॉट ईट दैट ऑयल, वी कैनॉट यूज दैट ऑयल फॉर कुकिंग एंड ऑल. सो दैट इज नॉन एडिबल ऑयल, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉन टॉक्सिक. वो जहरीला भी नहीं है, राइट, और वो बायोडिग्रेडेबल है. तो इसीलिए पेट्रोलियम, पेट्रोल की जगह हम उस ऑयल को यूज कर सकते हैं. एक तो नेचुरल एनर्जी है, उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा. और ऐसा अगर इसकी हमारे देश में 390 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड ऐसी है जो कि वेस्ट लैंड पड़ी हुई है इंडिया में, जिस पे कुछ नहीं हो रहा है. अगर उस लैंड को यूज करके हम जेट्रोफा प्लांट उगाएं तो हमारा पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम एयर पोल्यूशन विल आल्सो बी रिड्यूस. तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इंडिया का काफी पैसा बच जाएगा. सो निकारागुआ नाम का जो जगह है वहां पे अभी इसकी प्लांटेशन शुरू भी हो चुका है. सो वी कैन हैव दिस ऑल्टरनेटिव देयर. नाउ इन जापान 460 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एवरी ईयर, with a large amount being plastic waste. There are an estimated 30 billion plastic bags in circulation in Japan. In June 2005, the country's government introduced a bill that makes people pay for plastic shopping bags, hoping to reduce their use. A tax on plastic bags in Taiwan and Ireland has led to a reduction in their use there. ओके, जापान में 460 मिलियन टन जो है वेस्ट होता है, और उसमें से ज्यादातर वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट होता है. तो 30 बिलियन प्लास्टिक बैग्स जो है जापान सर्कुलेट करता है हर साल. इतना ज्यादा प्लास्टिक बैग यूज किया जाता है. तो जापान में 2005 में कंट्री की सरकार ने ये बिल पास किया, एक लॉ बनाया that every people have to pay for the plastic bags, shopping bags और ये सब जो खरीदते हैं ना प्लास्टिक के, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे. now they have to if they want the bag they have to pay good amount of money. तो ताकि उनको ये था कि जब पैसा महंगा बैग होगा प्लास्टिक का तो फिर लोग अपने आप खरीदेंगे नहीं और दूसरे बैग्स यूज करना शुरू करेंगे, और इससे पोल्यूशन, प्लास्टिक का पोल्यूशन कम होगा. तो ताइवान और आयरलैंड ने ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं इस चीज पे. ओके, इंडिविजुअल एक्शन. We have harmed the environment greatly, but we can also rectify our mistakes. The present generation is perhaps the last generation in a position to take action before irreversible damage is done. Most of us could manage with less water or use water more efficiently. This is true of other resources too. वी हैव हार्म द एनवायरनमेंट ग्रेटली. हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है, और ऐसा नुकसान पहुंचाया है दैट वी कैन नॉट रेक्टिफाई आवर मिस्टेक. हम अपनी इस गलती को सुधार नहीं सकते. द प्रेजेंट जनरेशन इज परहैप्स, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है मेरे ख्याल से लास्ट जनरेशन होगी जो कि इतने डैमेज को सही नहीं कर सकती, राइट. ऐसी पोजीशन पे हम खड़े हैं कि हम जो डैमेज हमने किया है उसको हम वापस सही नहीं कर सकते. बट मोस्ट ऑफ अस, अब जैसे आप ये इसका इससे समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों को कम पानी को यूज करते हुए सब चीजें करना आता है, या पानी को बहुत सही तरीके से यूज करना आता है. वरना बहुत से लोग तो ले गाड़ियां धो रहे हैं, पाइप मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, धो रहे हैं, और पानी चलो गाड़ी धोई तो लगा चलो और सड़क भी धो लो.
सड़क धो रहे हैं, they're wasting lot of water, but some people use the water very very efficiently. So बाकी रिसोर्सेज के साथ भी सेम ऐसे ही चीजें होती हैं, सेम चीज लागू होती है. We can all make efforts at conservation. One individual, Hardev Singh Hadeja, a retired police officer, has transformed his village, Raj Samadhiya in Gujarat, from a near desert to a green landscape. Now some people are really very क्या कहते हैं, very very sensitive towards environment, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं अपने आसपास की चीजों को लेके. सो उसमें से एक है हरियाणा के पुलिस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हरदेव सिंह हडेजा जी हैं. उन्होंने गुजरात के एक गांव राज समाधिया नाम का जो गांव है वो एक डेजर्ट था, वो लगभग एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था. अब उन्होंने एफर्ट से अपनी मेहनत से उस डेजर्ट को ग्रीन ग्रीन लैंड बना दिया, ग्रीन लैंडस्केप बना दिया, उसमें खूब पेड़ पौधे लगा के. You read in the last chapter how water levels have gone down drastically in Gujarat Hills. Hadeja redesigned the drainage system in his village to slow down the monsoon runoff. Water collects in specially dug ponds. उन्होंने कैसे किया? गुजरात में भी पानी की बहुत कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम उसको दोबारा से बनाया. जो पानी बारिशों में पानी जो इधर उधर बह के वेस्ट हो जाता था, बह जाता था पानी, उस पानी को बड़े बड़े पॉन्ड्स बना के उसमें इकट्ठा करना सिखाया लोगों को. वहां पे उन्होंने किया किया भी और लोगों ने सीखा भी वहां पे. तो ताकि वो बारिश का पानी बहे इधर उधर बहकर बर्बाद ना हो जाए, इसको उसको यूज करा जाए. द विलेजेस डू नॉट यूज द पॉन्ड वाटर, इट रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर. विलेजेस जो थे पॉन्ड वाटर को यूज नहीं करते थे, वो ऐसे ही रहने देते थे ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉन्ड वाटर जो है नीचे नीचे सिप होता जाए, एब्जॉर्ब होता जाए और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता जाए. ओल्ड टैंक्स हैव बीन रिवाइव. पुराने जो टैंक्स सूख गए थे अब वो दोबारा से भरने शुरू हो गए, उसमें पानी आना शुरू हो गया. वाटर इज नाउ अवेलेबल इन वेल्स एट अ डेप्थ ऑफ 7 मीटर. कुएं में भी पानी आने लगा, 7 मीटर तक कुएं में भी पानी आने लगा. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज द सेम बट द विलेजर्स यूज इट बेटर. बारिश जितनी होती है हर साल उतनी ही होती है, पर विलेजर्स को अब उस पानी को यूज करना आ गया विद द हेल्प ऑफ मिस्टर हरदेव सिंह हडेजा. So we can also find different ways. Now here is another story that shows what can be done by an integrated approach of environment conservation. Timbuktu in Anantpur district of Andhra Pradesh is a dry arid place. Choitresh Kumar Ganguly and his wife Mary started their work there with little money and only dreams in 1991. There was not a tree to give shade, no wood to build a hut. They found the nearby hills bare, denuded due to overgrazing. Rainwater would just run off. तो वहाँ पे देर इज अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश अनंतपुर. वहाँ पे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह है टिम्पकटू. वहाँ पे वो एरिया जो है बहुत ड्राई है, सूखा हुआ एरिया है. तो चौत्रेश कुमार गांगुली और उनकी वाइफ मैरी, उन्होंने जब वे अपना काम शुरू किया था तो उनके पास बहुत कम पैसा था, पर उनके सपने बड़े बड़े थे. 1991 में वहां पे कोई उस एरिया में कोई पेड़ नहीं था. देयर वाज नो ट्री, देयर वाज नो वुड कि अपनी झोपड़ी में लकड़ी लगा सके. कोई जब ट्री नहीं है तो वुड कहाँ से होगी. और वहाँ के जो पहाड़ थे वो बिल्कुल बेयर थे, कोई पेड़ नहीं था, पहाड़ बिल्कुल पहाड़ मिट्टी मिट्टी. और सारी ओवर ग्रेजिंग की वजह से सारी मिट्टी जो है जड़ से उखड़ी हुई थी और इधर हवा में खूब मिट्टी मिट्टी ही हवा में आती रहती थी. और रेन वाटर जो था, बारिश होती थी तो पानी बस सीधे सीधे बह जाता था क्योंकि पेड़ ही नहीं थे तो जो वो पानी को रोक सके. The couple persuaded the villagers to restrict grazing the cattle on the hills. तब उन कपल ने, उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने किसी तरह से परसुएटेड मीन्स विलेजर्स को मनाया और उनको मनाकर उनसे कहा कि अपने जानवरों को पहाड़ों पर
चरने के लिए नहीं भेजे और विलेजर्स ने उनकी बात मानी। द हिल्स बिकेम ग्रीन अगेन। इस तरह से जब जानवर पहाड़ों पे जाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे पेड़ उसमें होने लगे, बढ़ने लगे और फिर से हरियाली आने लगी। विद अ सिंगल हैंड पंप द टू built up a nursery of 1 lakh saplings of trees native to the region and distributed them. उन्होंने सिर्फ एक हैंड पंप की हेल्प से उन्होंने 1 लाख प्लांट्स के छोटे छोटे पौध तैयार किए और उन्होंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए। The villagers formed a वन संरक्षण कमेटी, a committee to protect forest. उन्होंने एक कमेटी बनाई, वन संरक्षण कमेटी नाम की, वन संरक्षण नाम की, जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। They dug ponds, trenches and pits on the slopes of the hills, built rock and mud-filled check dams and revived old wells. There is no water shortage now. अब उन्होंने पहाड़ी पे पॉन्ड्स बनाने शुरू हुए, ट्रेंचेस बनाने शुरू किए, पिट्स, ताकि जो बारिश का पानी बह जाता था उसके साथ मिट्टी बह जाती थी, इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकने के लिए उन्होंने ये सब चीजें करी। और अब वहां पे पानी, एक बूंद पानी की भी कमी नहीं है। तो उनके एफर्ट से टिम्बकटू जो है बहुत बढ़िया एरिया हो गया। टिम्बकटू कलेक्टिव हैज गॉन ऑन from rejuvenation to of wasteland to organic farming, propagation of traditional food crops, soil conservation, rural health, and a whole range of other activities. अब टिम्बकटू में वहाँ पे वेस्टलैंड को अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स जो थे उनके वो लगाए जाते थे, सारे सॉइल कंजर्वेशन के सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, गांव के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे और भी दूसरी एक्टिविटीज, जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज हो सकती हैं वहाँ सब होता है। हाउसेज आर नाउ लिट विथ सोलर पावर। वहाँ पे सोलर एनर्जी का भरपूर यूज किया जाता है। एंड नाउ दे हैव इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर। चार्जेस द बैटरी दैट पावर्स द कंप्यूटर्स। फिर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। सॉरी, देयर इज अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोलर पावर चार्जेस द बैटरी दैट पावर्स द कंप्यूटर। अब स्कूल भी वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल भी खोले गए हैं और सोलर पावर जो है चार्ज होते हैं सनलाइट से, तो चार्ज होती है, उसकी वजह से जो बैटरीज चार्ज हो जाती हैं और वो फिर बैटरीज की हेल्प से कंप्यूटर्स चलाए जाते हैं। द विलेजेस आर ऑल इन, सारे गांव वाले सब इन कामों में हेल्प करते हैं। खाली एक इंसान नहीं, सब लोग मिलके करते हैं, कोई लेजी जैसे नहीं बैठे। दे प्लान टू सेल ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड। अब वो ऑर्गेनिक खाने को बेचने का काम भी करते हैं। सो यू कैन से विद द एफर्ट्स, अगर हम इंसान चाहें तो अपने एफर्ट से हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वाइंडिंग अप हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। डू यू हैव एनी डाउट्स? Is there any problem? Tomorrow I will finish this chapter and then uh, you can write the question answers. I will send you the question answers. Any problem, bete? Unmute yourself, everyone. Any problem? In English, see, nearly all full syllabus is completed. Only that email writing is left, and I will be taking it afterwards. Let me finish your EVS syllabus, and then I have to take GK also. If you have not purchased GK books, you can purchase, or I will be sending the PDFs of your GK work. Please unmute yourself and just answer me if you have any problem.